Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will start our topic, and our topic is methods of preparation of acyl colorides. We have already studied about acid colorides. That acid colorides are derivatives of carboxylic acids, and we have studied rules for their naming. And today we will study different methods for the preparation of acid colorides. Now, acid colorides are most reactive out of all the other acid derivatives, that is anhydrides, esters, and amides. We can use different methods for the preparation of acid colorides, but the starting material for all of these is carboxylic acid. That is, we prepare acid colorides or acid halides from carboxylic acid by different methods. So the first method is we treat carboxylic acid with thionyl chloride. In this case, this OH is replaced by chlorine. Hydrogen atom goes to chlorine and forms HCl, and sulfur forms sulfur dioxide. So this is acid chloride that is formed by treating carboxylic acid with thionyl chloride. Now this is the best method for the preparation of acid chlorides. Reason is that the side products, that is sulfur dioxide and HCl, both of these are gases and they are easily removed from reaction mixture. Now, the next method is we treat carboxylic acid with phosphorus trichloride. In this case, we take three molecules of carboxylic acid and we treat with phosphorus trichloride. So, three molecules gain three chlorines from one molecule of phosphorus trihalide and are converted into acid chlorides. And this phosphorus, by combining with three molecules of OH, they form H3PO3 phosphorus acid. The next method for the preparation of acid halide is, in this case, we take carboxylic acid and we treat it with phosphorus pentachloride. In this case, product is acid halide, but along with phosphorus oxychloride is formed and HCl is formed. So when we will take phosphorus trichloride, acid halide is formed and phosphorus acid is formed. But when we take phosphorus pentachloride, acid halide is formed along with phosphorus oxychloride and HCl. Now, all these reactions involve nucleophilic addition elimination by a chloride on a highly reactive intermediate. हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस के बारे में पहले ही पढ़ा है और एसिड डेरिवेटिव्स के रिएक्शंस भी पढ़े हैं कि इनके जो रिएक्शंस हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, वो एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन है। यानी एल्डिहाइड कीटोन्स की तरह जस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं है, बल्कि इस केस में पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी और फिर एलिमिनेशन होगी। और हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें एसाइल ग्रुप जो है वो एज सच प्रेजेंट रहेगा। अगर सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो तो एसाइल ग्रुप जो है वो अपनी आइडेंटिटी खो देगा, बट एडिशन के बाद जब एलिमिनेशन होगी तो एसाइल ग्रुप दोबारा से रीजनरेट होगा। अब इन तीनों में से हम जस्ट थायोनाइल क्लोराइड के साथ मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड हैलाइड बनाएंगे बाय रिएक्टिंग विद थायोनाइल क्लोराइड। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। mechanism for the synthesis of acyl chlorides using thionyl chloride. Now this is a molecule of carboxylic acid, RC double bond OH. This is a molecule of carboxylic acid, and this is thionyl chloride, S double bond O, one chlorine and other chlorine. In this case, oxygen has partial negative charge and sulfur has partial positive. So the oxygen of carboxylic acid with lone pair acts as a nucleophile and attacks on this sulfur, and this bond shifts to oxygen. So we get this intermediate oxygen when attacks on sulfur, it forms three bonds. टू बॉन्ड इसके ऑलरेडी थे, थर्ड बॉन्ड इसने सल्फर के साथ फॉर्म किया है, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो नेक्स्ट ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है दोबारा से यहाँ आएगा, सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड फॉर्म होगा और यहाँ से जो क्लोराइड है ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से लीव कर जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट बनेगा RC डबल बॉन्ड O OH और सल्फर के साथ डबल बॉन्ड O और वन क्लोरीन। ठीक है, एक क्लोरीन यहाँ पर रिमूव हो गई है। अब जस्ट यहाँ पर वन क्लोरीन है और इस ऑक्सीजन पर भी पॉजिटिव चार्ज है।
नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में वो क्लोराइड जिसने फर्स्ट स्टेप में लीव किया था वो दोबारा से आएगा, और यहाँ पर अब अटैकिंग जो स्पीशीज जहाँ पर उसने अटैक करना है वो कार्बोनिल कार्बन है जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। सो क्लोराइड इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, और ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट है ये प्रोटोनेटेड एसाइल क्लोरोसल्फाइड है। प्रोटोनेटेड यहाँ पर प्रोटॉन है मौजूद, ये एसाइल है ग्रुप, आर सी डबल बॉन्ड हो एसाइल, ये क्लोरो ग्रुप है, एसाइल क्लोरोसल्फाइड। ठीक है, दिस इज प्रोटोनेटेड एसाइल क्लोरोसल्फाइड। अब क्लोराइड आयन के अटैक के बाद हमारे पास ये स्पीशी आएगी जहाँ पर क्लोराइड अटैच हो गया और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये वाला पार्ट एज सच प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर था वैसे ही यहाँ भी मौजूद है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज दोबारा से यहाँ आएगा, ऑक्सीजन और कार्बन में बॉन्ड फॉर्म होगा, और ये यहाँ से ये वाला जो सारा पार्ट है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। ये हमारा एसिड हैलाइड फॉर्म हो गया। अब बाकी ये वाला मॉलिक्यूल हमारे पास बचा पीछे एच ओ एस डबल बॉन्ड ओ एंड क्लोराइड। तो नेक्स्ट स्टेप में ये होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान शिफ्ट होगा, और जो क्लोराइड है वो यहाँ से फिर से लीव करेगा, और ये क्लोराइड जो है वो एच पॉजिटिव के साथ मिलकर HCl फॉर्म कर देगा। सो ये सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बन जाएगा SO2, और ये HCl। इस तरह से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया है। तो ये था मैकेनिज्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिड हैलाइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड बाय रिएक्टिंग विद थायोनाइल क्लोराइड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्लोराइड्स। अब एसिड क्लोराइड्स के बारे में हमने पढ़ा है कि एसिड क्लोराइड जो है वो मोस्ट रिएक्टिव डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। रीजन उसकी क्या है कि जो क्लोराइड है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप है, और लिविंग ग्रुप बेस्ट है इसलिए ये रिएक्टिव है बाकी सारे डेरिवेटिव से, और इनको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एसिड एनहाइड्राइड्स, इनटू एस्टर्स एंड एमाइड्स। ठीक है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इस डेरिवेटिव से दूसरे डेरिवेटिव्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टार्टिंग मटेरियल कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिया गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड से हम पहले बनाएंगे एसिड हेलाइड एसाइल क्लोराइड बाय ट्रीटिंग विथ थायोनाइल क्लोराइड और PCl3 और PCl5। ठीक है, इनमें से किसी के साथ भी ट्रीट करवाएंगे तो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिड हेलाइड में या एसाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास एसाइल क्लोराइड है, अब हमने देखना है कि डिफरेंट किस किस रीजेंट के साथ रिएक्ट करेगा और उससे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सबसे पहला तो जो हमारे एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन है वो है विद सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव सोडियम पॉजिटिव, ये क्या है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इससे पहले बच्चों हमने पढ़ा है कि जब भी एसिड के टू मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो एनहाइड्राइड बनता है। एसिड के टू मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करते हैं तो एनहाइड्राइड बनता है। तो अगर हम एसिड हैलाइड जो है वो भी एसिड का डेरिवेटिव है, और जो सोडियम सॉल्ट है वो उसको भी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से ही लिया है, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो इससे भी हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड आएगा। यहाँ से सोडियम रिमूव होगा और यहाँ से क्लोराइड, और ये दोनों मिलकर बना देंगे सोडियम क्लोराइड, और हमारे पास आ जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। तो अगर हमने एसिड एनहाइड्राइड बनाना है एसिड हेलाइड से, तो हम एसिड हेलाइड को एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं, और हम एसिड हेलाइड को एसिड के सोडियम सॉल्ट से भी रिएक्ट कर सकते हैं। दोनों केसेस में हमारे पास प्रोडक्ट एसिड एनहाइड्राइड बनेगा। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज विद अल्कोहल, ROH मींस अल्कोहल। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जब भी हम अल्कोहल से रिएक्ट करवाते हैं तो एस्टर बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जब भी अल्कोहल से रिएक्ट करवाते हैं तो एस्टर बनता है। इसी तरह एसिड हैलाइड को भी अगर हम अल्कोहल से ट्रीट करवाएंगे तो हमारे पास एस्टर ही आएगा। यहाँ से Cl रिमूव होगा और यहाँ से हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर HCl बना देंगे, और ये जो OR ग्रुप है ये यहाँ इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और हमारा फंक्शनल ग्रुप जो डेवलप होगा वो है एस्टर। अब बच्चों यहाँ पर जो आपको डैश नजर आ रहा है R डैश, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, अब R डैश यहाँ पे R है और ये R डैश, इसका मीनिंग ये है कि ये R जो है ये इस R से डिफरेंट है। ये सेम भी हो सकता है और
डिफरेंट भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि हमने जो अल्कोहल लिया है उसमें आर ग्रुप जो है वो इस एसिड हैलाइड से सिमिलर है या डिफरेंट। बट अगर डैश लिखा है इट मींस कि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस आर। नाउ नेक्स्ट है फ्रेडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। नाउ व्हाट इज फ्रेडल क्राफ्ट्स रिएक्शन? फ्रेडल क्राफ्ट्स रिएक्शन में जो टू टाइप्स के होते हैं फ्रेडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रेडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। अब हमारे पास यहाँ पर एसाइल ग्रुप है, सो ये एग्जांपल है फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हम क्या करते हैं, हम बेंजीन रिंग को ट्रीट करवाते हैं विद एसिड हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लेवस एसिड कैटलिस्ट, दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, आयरन क्लोराइड। तो उससे होता ये है कि बेंजीन रिंग पे एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। तो अगर हम एसिड हैलाइड को बेंजीन रिंग से ट्रीट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये एसाइल ग्रुप जो है, ये एसाइल ग्रुप आके बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाएगा। अब ये हमारे पास बच्चों बन गई है कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। नेक्स्ट है कि अगर हम एसिड क्लोराइड को अमोनिया के साथ ट्रीट करवाएंगे, एसिड क्लोराइड को अगर हम अमोनिया से ट्रीट करवाएंगे तो हमारे पास जो डेरिवेटिव बनेगा वो बनेगा एमाइड। यहाँ से NH2 ग्रुप कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन और Cl मिलकर HCl बना देंगे। या अगर हम इस केस में अमोनिया के हम 2 मॉलिक्यूल्स के साथ ट्रीट करवाते हैं तो एक जो है वो NH2 की फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा और दूसरा जो है हाइड्रोजन वो दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल को लेगा देगा, इस तरह यहाँ पर बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव बन गया एमाइड। नेक्स्ट अगर हम अमोनिया के किसी डेरिवेटिव से ट्रीट करवाएं, अमोनिया में अगर 1 हाइड्रोजन को हम R से रिप्लेस कर दें बच्चों तो ये बन जाती है प्राइमरी एमाइन। अगर हम एसिड हैलाइड को प्राइमरी एमाइन के साथ ट्रीट करवाएंगे तो भी बनना तो एमाइड ही चाहिए, एमाइड बनेगा। बट इस केस में अब नाइट्रोजन के साथ एक आर ग्रुप अटैच्ड है, सो इट्स एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। यानी नाइट्रोजन पे कोई ग्रुप अटैच्ड है, सो इट्स एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। अब ये जो भी ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसका नेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट केस में अमोनिया से एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया विद आर, सो इट्स आर डैश आर डबल डैश NH, यानी डाई सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया मॉलिक्यूल है। या आप कह सकते हैं ये सेकेंडरी एमाइन है जिसमें नाइट्रोजन के साथ 2 R ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये एक सेकेंडरी एमाइन है। सेकेंडरी एमाइन से ट्रीट कराएंगे फिर भी बच्चों एमाइड ही बनेगा, बट ये NN डाई सब्स्टिट्यूटेड एमाइड होगा, NN डाई सब्स्टिट्यूटेड एमाइड होगा। जी। नेक्स्ट जो लास्ट रिएक्शन है बच्चों वो एसिड हैलाइड का रिएक्शन है विद RMgX। RMgX इज नोन एज ग्रीगनॉर्ड्स रिएजेंट। और ये रिएक्शन आप डिटेल में पढ़ चुके हैं इन द चैप्टर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स के ग्रीगनॉर्ड रिएजेंट जब भी एसिड हैलाइड से रिएक्ट करेगा तो कीटोन्स बनेंगे। ठीक है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट एसिड हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कीटोन्स बनेगी। यहाँ पर इस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में ये जो R होता है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा। नेक्स्ट स्टेप में जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ पे प्रोटॉन आ जाएगा और लिविंग ग्रुप लीव करेगा। हेलोजन प्रोटॉन नहीं आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दोबारा शिफ्ट होगा और क्लोराइड लीव करेगा और हमारे पास कीटोन आ जाएगी। सो एसिड हैलाइड से हम डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड बना सकते हैं। और ये डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड जो है इनको अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना चाहें तो रिएक्शन इतना इजी और फास्ट नहीं होता जितना कि एसिड क्लोराइड से होता है। सो एसिड क्लोराइड से हम एसिड एनहाइड्राइड बना सकते हैं, हम एस्टर्स बना सकते हैं, हम उससे कीटोन्स एरोमेटिक कीटोन्स बना सकते हैं, एमाइड्स बना सकते हैं, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स बना सकते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बना सकते हैं और कीटोन्स भी बना सकते हैं, एलिफेटिक कीटोन्स भी बना सकते हैं इस रिएक्शन में। और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एरोमेटिक कीटोन बनी है और यहाँ पर एलिफेटिक कीटोन बनी है। अब नेक्स्ट सेक्शन है बच्चों के जो जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स हैं वो इतने स्टेबल नहीं है, उन सबको हम रिकन्वर्ट कर सकते हैं टू ओरिजिनल कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके लिए सिंपल हमें उसकी हाइड्रोलिसिस करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड आर बेस। तो कोई भी एसिड हैलाइड ले लें, अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपने यही मॉलिक्यूल लेना है, डाईफिनाइल कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन, आप सिंपल सा कोई एसिड हैलाइड ले लें। अगर हम उसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एट 0 सेंटीग्रेड तो यहाँ से क्लोरीन रिमूव होकर यहाँ पर OH आ जाएगा, मींस
कि जो भी हमारा एसिड हैलाइड होगा वो ओरिजिनल एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो एसिड्स को हम डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो उनके डेरिवेटिव्स हैं उनसे दोबारा हम एसिड को रीजनरेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सेकंड डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे और सेकंड डेरिवेटिव इज एसिड एनहाइड्राइड. No, acid anhydrides are those substances which are obtained after the elimination of one water molecule from the carboxyl group of two carboxylic acids molecules or from two carboxyl groups of dicarboxylic acid. यानी अगर तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है तो टू मॉलिक्यूल्स के दरमियान से हम वन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे, और अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एक ही मॉलिक्यूल के दो कार्बोक्सिल ग्रुप्स के दरमियान से हम वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे तो हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड्स आएंगे। इनको हम डाई एसाइल ऑक्साइड्स भी कहते हैं। जैसे हमारे पास जो ईथर्स हैं उनको हम डाई एल्काइल ऑक्साइड्स कहते हैं। ये देखें बच्चों, इसमें ये एसाइल ग्रुप है और ये भी एसाइल ग्रुप है, तो इसको हम कह सकते हैं डाई एसाइल और दरमियान में ऑक्सीजन है, तो इसको हम डाई एसाइल ऑक्साइड कह सकते हैं। तो जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स होंगे उनमें दोनों साइड्स पे एसिड ग्रुप्स होंगे और दरमियान में एक ऑक्सीजन होगी, जो दोनों के OH ग्रुप में से एक से OH और एक से हाइड्रोजन रिमूव होगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और पीछे एक ऑक्सीजन रह जाएगी। सो एसिड एनहाइड्राइड्स आर नोन एज डाई एसाइल ऑक्साइड्स। अब नेक्स्ट है कि हमने इनके जो हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड्स हैं उनकी हमने नेमिंग कैसे करनी है। तो एसिड एनहाइड्राइड्स की नेमिंग उनके ओरिजिनल एसिड से ही करते हैं कि जो स्टार्टिंग मटेरियल जिस एसिड से हमने वो एनहाइड्राइड लिया है हम उस एसिड का नाम लिखेंगे, और जो वर्ड एसिड होगा वहां पर, जैसे हम एसिटिक एसिड है तो हम एसिटिक एसिड में से एसिड को रिमूव कर देंगे और उस एसिड की बजाय हम लिखेंगे वर्ड एनहाइड्राइड। देखिए हम इस केस में ये टू कार्बन हैं, टू कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज एसिटिक एसिड। तो हमने एसिटिक लेना है, एसिड नहीं लिखना, बल्कि उसकी बजाय हमने लिखना है एनहाइड्राइड। इस केस में ये बेंजोइक एसिड है और ये भी बेंजोइक एसिड का पार्ट है। इसाइल ग्रुप कहाँ से आया? बेंजोइक एसिड से। सो इसको हम कहेंगे बेंजोइक एनहाइड्राइड। अब हम वर्ड एसिड नहीं लिखेंगे। अब यहाँ तो अगर दोनों ग्रुप सिमिलर हैं फिर तो हम जस्ट एसिड का नाम लिखेंगे और एनहाइड्राइड लिख देंगे। लेकिन अगर दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स डिफरेंट हों, जैसे इस केस में इस साइड पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वन कार्बन है, तो वन कार्बन एसिड को हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। और यहाँ पर जो सेकंड एसाइल ग्रुप है उसमें टू कार्बन हैं, तो टू कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कहते हैं एसिटिक एसिड। सो इसमें टू एसिड्स हैं, ये टू एसिड्स का एनहाइड्राइड है फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। अब हम दोनों एसिड्स के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले एस्टिक आएगा, देन फॉर्मिक और फिर एनहाइड्राइड। सो इट्स एस्टिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। ये तो थी इनकी नेमिंग। नाउ नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स। नाउ जो लो मोलिकुलर वेट एनहाइड्राइड्स हैं वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, और अब जो नोनानोइक एनहाइड्राइड्स हैं, 9 कार्बन से ज्यादा वाले जो एनहाइड्राइड्स हैं दे आर सॉलिड। और जो एनहाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स हैं बच्चों, दे आर क्लोज टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड अदर अनएसोसिएटेड कंपाउंड्स, मींस वो सारे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो कंपेरेबल वेट एनहाइड्राइड का जिसके साथ कंपेयर करेंगे उसी से रिलेटेड उसका बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। एल्डिहाइड कीटोन्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, एनहाइड्राइड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड नहीं है, तो इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो ये सारे अनएसोसिएटेड कंपाउंड्स हैं, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी एक दूसरे से कंपेरेबल हैं। और जो हमारे एनहाइड्राइड्स हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड्स भी कह सकते हैं या सिंपल इनको एसिड एनहाइड्राइड्स भी कह सकते हैं। सो फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स एंड द एसिड। ये वही मेथड है बच्चों जो अभी हमने पीछे भी पढ़ा है कि अगर हम एसिड हैलाइड को एसिड से ही रिएक्ट करवाएं, वैसे तो सिंपल है कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के दरमियान से अगर वन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो एनहाइड्राइड फॉर्म होगा। लेकिन अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोराइड रिमूव होकर HCl फॉर्म कर देगा, और ये C डबल बॉन्ड O जो है ये इस ऑक्सीजन के साथ आकर
अटैच हो जाएगा। देखिए R2 C डबल बॉन्ड O ये इस ऑक्सीजन के साथ आकर अटैच हो गया। सो अब इसमें ये एसाइल ग्रुप है, ये एसाइल ग्रुप है और दरमियान में ऑक्सीजन है। तो स्ट्रक्चर सेम है जो कि एसिड एनहाइड्राइड की है। सो इट्स एन एसिड एनहाइड्राइड। अगर दोनों मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के होते तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमने एक एसिड हेलाइड लिया और एक एसिड लिया है तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर HCl फॉर्म होगा। अब जो यहाँ पर जो रिएजेंट यूज किया गया इस रिएक्शन में दैट इज पिरिडीन, C5H5N इज पिरिडीन। पिरिडीन को यहाँ पर क्यों यूज किया गया है? क्योंकि इस केस में जो HCl फॉर्म होगा, HCl जो भी फॉर्म होगा वो प्रोटॉन जो है वो नाइट्रोजन के पास चला जाएगा, जिससे नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोराइड जो है वो इस पॉजिटिव को बैलेंस करेगा। नाउ इट्स नोन एज पिरिडीनियम क्लोराइड। ये क्लोराइड जो है ये यहाँ पर ही है, नाइट्रोजन पॉजिटिव को ये क्लोराइड नेगेटिव बैलेंस कर रहा है। So function of pyridine is to remove HCl that is formed as a side product. अगर HCl को हम यहाँ से remove नहीं करेंगे तो ये reverse reaction भी हो सकता है। नो नेक्स्ट मेथड नहीं, यहाँ पर ये हमने जस्ट जनरल रिएक्शन पढ़ा है, R1 R2 लिखा है। अब हम ये R1 की बजाय हम एल्काइल ग्रुप लिखेंगे कि यहाँ पर ये CH3 है और एसिड हेलाइड में ये इथाइल ग्रुप है। यहाँ पर मिथाइल है और यहाँ पर इथाइल है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर हम बनाएंगे तो एक साइड पे एसाइल एसिटाइल ग्रुप आएगा और एक साइड पे प्रोपेनॉइल ग्रुप आएगा। ठीक है, सो इट्स एस्टिक प्रोपाइनिक एसिड एनहाइड्राइड है। ठीक है, एस्टिक एसिड है एक तरफ और एक तरफ प्रोपाइनिक एसिड है, उन दोनों का ये एनहाइड्राइड है। और pyridine का सेम फंक्शन है कि वो HCl जो रिएक्शन मिक्सर में बनेगा ये उसको वहां से रिमूव करेगा। ये जनरल मेथड है, इससे हम मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। मिक्स्ड मींस जिनमें दोनों आर ग्रुप्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, मिक्स्ड मींस जिनमें दोनों आर ग्रुप्स डिफरेंट है, हम वो एसिड एनहाइड्राइड इस मेथड से बना सकते हैं। क्योंकि एक मॉलिक्यूल हमने एसिड का लेना है तो हम डिफरेंट एसिड ले सकते हैं, और दूसरा मॉलिक्यूल हमने एसिड हैलाइड का लेना है तो वो हम डिफरेंट ले सकते हैं। इस तरह हमारे पास जो एनहाइड्राइड आएगा वो मिक्स्ड आएगा कि उसमें दोनों एसाइल ग्रुप्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। ये तो था पहला मेथड कि हम एसिड एनहाइड्राइड प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड हैलाइड। अब सेकंड मेथड है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर। तो रिमूवल ऑफ वाटर से जो हमने एनहाइड्राइड्स बनाने हैं वो ऐसे होगा कि जो भी हमने एनहाइड्राइड बनाना है हम उससे रिलेटेड एसिड लेंगे। एसिड के टू मॉलिक्यूल्स के दरमियान से वन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, एक साइड से हाइड्रोजन और दूसरी से OH आयन रिमूव होगा, और ये ऑक्सीजन जो है इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी और हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा एनहाइड्राइड। और यहाँ पर हम कोई डिहाइड्रेटिंग पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे, दैट इज P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इज पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये यहाँ पर जो भी वाटर प्रोड्यूस होगा ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट वाज सेकंड मेथड दैट इज डिहाइड्रेशन, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उससे एनहाइड्राइड बनेगा। नेक्स्ट हमने एग्जांपल ले लिया कि अगर हम एसिटिक एसिड लेंगे उसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा, और उसके साथ साथ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जब वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो इससे फास्फोरिक एसिड बन जाएगा। नाउ थर्ड मेथड इज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एन एसिड एंड अ कीटीन। एसिड एसिड एंड अकीटीन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाना है, लेकिन ये जो कीटीन है इसको भी हम यानी ये प्रिपेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती, इसको भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड से ही प्रिपेयर करेंगे। कैसे? अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट अप करें 9 above 900 degree centigrade, that is 973 centigrade in the presence of aluminum phosphate, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से सिंगल मॉलिक्यूल से ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। जो पहले हमने डिहाइड्रेशन पढ़ी वो टू मॉलिक्यूल्स के दरमियान से वन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, लेकिन यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, यानी इस कार्बन से OH और नेक्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा और इन दोनों कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस ऑक्सीजन के साथ बच्चों पहले से ही कार्बन का डबल बॉन्ड है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है, तो इस ऑक्सीजन के साथ पहले से ही डबल बॉन्ड है। सिर्फ क्या होगा, यहाँ से OH और एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा। अब जब दो एडजेसेंट एटम से दो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स रिमूव हो तो उन दोनों के दरमियान में डबल बॉन्ड बन जाएगा। सो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज कीटीन। अब हमने इस कीटीन को रिएक्ट करवाना है विद
कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं। अब इसमें बच्चों है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और आपको पता है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे एडिशन रिएक्शंस होते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे एडिशन रिएक्शन इजीली हो सकते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास टू पार्ट्स हैं, वन जो है वो H पॉजिटिव है, और बाकी ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अब जब हम इसको इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगा। वन कार्बन के साथ, कॉर्नर वाली कार्बन के साथ प्रोटॉन चला जाएगा, और इस कार्बन के साथ O C डबल बॉन्ड O CH3 आ जाएगा। देखिए ये CH2 यहाँ पर अगर प्रोटॉन आएगा ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में। फिर ये C डबल बॉन्ड O है, और फिर ये वाली जो ऑक्सीजन है ये आके इस कार्बन से अटैच हुई है, तो ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो ये हमारे पास आ गया एसिटिक एनहाइड्राइड। यानी ये कौन सा रिएक्शन है, सिंपल एडिशन है। एसिटिक एसिड में टू पार्ट्स हैं, H पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव। तो H पॉजिटिव जो है वो एंड वाली कार्बन के पास आ जाएगा, और ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन के पास आ जाएगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। और जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये थर्ड मेथड था बच्चों। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमने एसिड नहीं लिया, हमने एसिड का सोडियम सॉल्ट लिया है। एसिड को अगर हम बेस से ट्रीट करवा देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये हमारे पास बन जाएगा एसिड का सोडियम सॉल्ट। तो एसिड के सोडियम सॉल्ट को भी अगर हम एसिड हैलाइड से ट्रीट करवाएंगे तो भी ये नेगेटिव कार्बन आके इस कार्बन पर अटैक करेगी, यहाँ से क्लोराइड, और यहाँ से सोडियम रिमूव होकर सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर देगा। और जो बाकी पार्ट है वो दोनों पार्ट्स आपस में मिलेंगे तो हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड आ जाएगा। अब ये R1 और R2 सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब हम इसकी यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कि जो हमने सोडियम सॉल्ट लिया है वो हमने प्रोपेनोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट लिया, 3 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने सोडियम सॉल्ट लिया है, और 2 कार्बन एसिड का हमने हेलाइड लिया है। सोडियम क्लोराइड रिमूव हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन आके इस कार्बन से अटैच हो जाएगी। तो हमारे पास एक साइड पे प्रोपेनॉइल ग्रुप आएगा और एक साइड पे एसिटाइल ग्रुप आ जाएगा, और इन दोनों का ये हमारे पास एनहाइड्राइड आ जाएगा। इस केस में कह रहे हैं कि जो हमारा कार्बोक्सिलेट आइन है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। ये कार्बोक्सिलेट आइन है, ठीक है, ये कार्बोक्सिलेट आइन है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। यानी ये जाके इस कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा एट द एसाइल कार्बन ऑफ एसाइल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है, सो ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी ये अटैच हो रहा है और यहाँ से क्लोराइड रिमूव हो रहा है, इसलिए ये एडिशन नहीं है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन है। अभी तक जो हमने एनहाइड्राइड्स प्रिपेयर किए वो स्ट्रेट चेन थे, एलिफेटिक एनहाइड्राइड थे। नेक्स्ट एक और टाइप के एनहाइड्राइड्स हैं, साइक्लिक एनहाइड्राइड्स। अब साइक्लिक एनहाइड्राइड्स कब फॉर्म होंगे, जब कार्बोक्सिलिक एसिड के टू फंक्शनल ग्रुप्स, टू मॉलिक्यूल्स, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो कार्बोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, तो उन दोनों के दरमियान से अगर वन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, यानी इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होगी, तो हमारे पास साइक्लिक एनहाइड्राइड आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 4 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है एंड इट्स नोन एज सक्सिनिक एसिड। तो एक कार्बोक्सिल ग्रुप से OH और दूसरे से हाइड्रोजन रिमूव होगा, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी। इस तरह ये हमारे पास साइक्लिक एनहाइड्राइड आ जाएगा, दैट इज सक्सिनिक एनहाइड्राइड। साइक्लिक एनहाइड्राइड बनेगा कब बनेगा, जब हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स मॉलिक्यूल लेंगे और उनकी हम डिहाइड्रेशन करवाएंगे। तो अब ये डिहाइड्रेशन बच्चों होगी इंट्रा मॉलिक्यूलर, यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से हुई है। इससे पहले तक जो हमने डिहाइड्रेशन पढ़ी थी वो इंटर मॉलिक्यूलर थी, यानी टू मॉलिक्यूल्स के दरमियान से थी, तो उससे स्ट्रेट चेन एलिफेटिक एनहाइड्राइड्स बनते हैं। बट जब हम एक ही मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे और ये सिंपल हीट करने से हो जाएगा, साइक्लिक एनहाइड्राइड बनेगा और इसके साथ साथ वाटर रिमूव होगा। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने थैलिक एसिड लिया। थैलिक एसिड क्या है बच्चों, कि बेंजीन रिंग के साथ अगर टू कार्बोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड हैं एट 1 2 पोजीशन, इट्स नोन एज थैलिक एसिड। इन दोनों में से एक से प्रोटॉन और दूसरे से OH अगर रिमूव होगा बाय हीटिंग एट 230 सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस, तो वाटर रिमूव होगा और ये 5 मेंबर रिंग हमारे पास आ जाएगा, और ये है थैलिक एनहाइड्राइड। और ये 100% कन्वर्जन हो जाती है। थैलिक एसिड को अगर हम हीट करें तो जो थैलिक एनहाइड्राइड है वो 100% फॉर्म हो जाता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड एनहाइड्राइड्स की। अब एसिड एनहाइड्राइड्स भी बच्चों जो है वो एस्टर से और एमाइड से ज्यादा रिएक्टिव है, बट ये एसिड हैलाइड से लेस रिएक्टिव है। तो एसिड के चारों डेरिवेटिव्स में से जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा उससे हम बाकी तीनों डेरिवेटिव्स बना सकते हैं। यानी एसिड हैलाइड से हमने तीनों डेरिवेटिव्स बनाए थे। अब नेक्स्ट जो हम एसिड एनहाइड्राइड पढ़ रहे हैं, ये एसिड हैलाइड से लेस रिएक्टिव है, इसलिए हम इससे एसिड हैलाइड नहीं बना सकते, लेकिन इससे हम एस्टर बनाएंगे और इससे हम एमाइड और इसके अलावा कुछ और रिएक्शंस हम इसके पढ़ते हैं। ये एसिड एनहाइड्राइड है। सबसे पहले एसिड ही तरह की तरह इसका भी रिएक्शन, अगर हम इसको अल्कोहल से ट्रीट करवाएंगे एसिड एनहाइड्राइड को, तो हमारे पास एस्टर आ जाएगा। देखिए RC11O R, एक साइड पे तो ये आ जाएगा, OR आ जाएगा, दूसरी साइड पे क्या बचेगा हमारे पास R2C11OOH, यानी कि R एक साइड पे लग जाएगा और दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा OH। तो एसिड एनहाइड्राइड को जब भी हम अल्कोहल से ट्रीट करवाएंगे तो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारे पास, एक एस्टर बनेगा और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट, अगर हम इसको अमोनिया से ट्रीट करवाएंगे तो बच्चों हमारे पास एक साइड से तो अमाइड बन जाएगी, यहाँ पर NH2 आ जाएगा, एमाइड बनेगा। और अमोनिया के हमने 2 मॉलिक्यूल्स दिए हैं, तो दूसरा जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है वो यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके अमोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दूसरी साइड से यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ NH4 पॉजिटिव लगेगा, तो वो एसिड का अमोनियम सॉल्ट होगा। यानी जब भी एसिड एनहाइड्राइड को अमोनिया से ट्रीट करवाएंगे तो ऑलवेज 2 मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, एक मॉलिक्यूल इस तरफ आएगा और एमाइड बन जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल इधर ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा और उससे एसिड का अमोनियम सॉल्ट बनेगा। एमाइड बन गया और अमोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट हमने लिया सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया, दैट इज प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन के साथ रिएक्ट कराएंगे, सेम प्रोडक्ट्स होंगे बच्चों, एक साइड पे हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड एमाइड आएगा और दूसरी तरफ अमोनियम सॉल्ट ही आएगा, लेकिन अमोनियम सॉल्ट में से एक हाइड्रोजन की बजाय वहां पर R ग्रुप अटैच होगा, क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी एक R अटैच था। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट सेम है, सिर्फ इस हाइड्रोजन की बजाय यहाँ पे R आएगा और यहाँ भी एक हाइड्रोजन की बजाय R आ जाएगा। एमाइड और अमोनियम सॉल्ट ही बनेंगे, बट सब्स्टिट्यूटेड एमाइन बनेगा और सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बनेगा। नेक्स्ट है, अगर हम इसको सेकेंडरी एमाइन से ट्रीट करवाएंगे, ठीक है, अगर हम इसको सेकेंडरी एमाइन से ट्रीट करवाएंगे तो भी हमारे पास बच्चों एमाइड और अमोनियम सॉल्ट्स ही आएंगे, बट अब जो एमाइड है वो भी डाई सब्स्टिट्यूटेड होगा, उस पर 2R ग्रुप्स अटैच होंगे, और जो अमोनियम साल्ट है वो भी डाई सब्स्टिट्यूटेड होगा, उस पर भी 2R ग्रुप्स अटैच होंगे। नेक्स्ट है बच्चों रिडक्शन। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ पर अगर हम सोडियम के साथ इनकी रिडक्शन करेंगे, मेटालिक सोडियम है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसकी रिडक्शन करवाएंगे। दो तरह की रिडक्शंस हैं, तो रिडक्शन से हमारे पास जो दोनों साइड्स के R ग्रुप्स हैं वो अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोनों दोनों साइडों से ये वाले जो ग्रुप्स हैं इन दोनों से हमारे पास अल्कोहल्स बन जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट वन है फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन मैंने आपको पहले भी बताया कि बेंजीन रिंग को हम ट्रीट करवाते हैं विद एसिड हेलाइड और एसिड एनहाइड्राइड। दोनों केसेस में रिंग पर एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है और कैटलिस्ट इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड या एल्यूमिनियम ब्रोमाइड या आयरन क्लोराइड लेते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ से ये एसाइल ग्रुप बेंजीन रिंग पे इंट्रोड्यूस होगा और जो बाकी ग्रुप बचेगा उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, जो बाकी ग्रुप बचेगा उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एसाइल ग्रुप एक तरफ आ जाएगा और जो दूसरी साइड पे ग्रुप बचेगा उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। हाँ, अब लास्ट पे ये बता रहे हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड्स हैं उनकी भी हाइड्रोलिसिस होती है और उनकी भी अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो ओरिजिनल एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने एसिड हैलाइड्स के बारे में पढ़ा कि उनकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड हैलाइड से भी एसिड्स रीजनरेट होते हैं। इसी तरह अगर हम एसिड एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे, अब इसकी हाइड्रोलिसिस 2 टाइप्स की हो सकती है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है बच्चों और बेसिक हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है। अगर हम सिंपल हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो दोनों तरफ के जो R ग्रुप्स हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस साइड से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और इस साइड से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन अगर हम बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे
तो एसिड नहीं बनेगा, एसिड का सोडियम सॉल्ट, यानी एसिड का सॉल्ट बनेगा। बेस फॉर एग्जांपल अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया है, तो फिर यहाँ पर एसिड नहीं बनेगा, एसिड का सोडियम सॉल्ट बनेगा। और इस सोडियम सॉल्ट की फिर अगर हम सिंपल हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो उससे भी वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी दोनों में प्रोडक्ट सेम है, जस्ट डिफरेंस क्या है कि इसमें डायरेक्ट एसिड बन जाएगा, इसमें एसिड को बनाने के लिए 2 स्टेप्स लगेंगे। फर्स्ट स्टेप में एसिड का सॉल्ट बनेगा और इसकी फिर से हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो सेकंड स्टेप में वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो थे एलिफेटिक एनहाइड्राइड। अब नेक्स्ट हमारे पास है साइक्लिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये हमारे पास है साइक्लिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड है, मैलिक एसिड का एनहाइड्राइड है, डाई 4 कार्बन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इन विच देयर इज डबल बॉन्ड बिटवीन सेकंड एंड थर्ड कार्बन। इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी फ्यू मिनट्स में, तो इससे हमारे पास 94% यील्ड आ जाएगी, यानी वाटर ऐड हो जाएगा यहाँ पर जो रिमूव हुआ था इसको बनाने में, और ये दोबारा से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन क्यों हो रहा है, फ्यू मिनट्स में क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें रिंग थोड़ा स्मॉल है बच्चों, और अगर इसकी हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो इससे इसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। थैंक यू।